Hello students, my name is Priyanka Pathak. I am Assistant Professor at BVD University in Mass Comm department. In this video lecture, you will study about the subject print journalism, that is in your course of Masters of Journalism and Mass Communication. So in print journalism, we will study about the terms of print journalism. We will study about news, how it is written, how it is reported, what are the elements of news, what are the sources of news, and what are the different kinds of news. So here we start our lecture. So in this video lecture, we will cover the topic what is news, concept of news, type of news. So now what is news? So news is a report of any current event, issue, problem happening which interests a large number of people and that is unknown to anybody, means that is fresh and the things happen and the that is not reported before. So news is fresh, current happening of the problem, issue, event, anything that is current and it should be reported on time. सपोज कोई इवेंट होता है, कोई हैपनिंग हो जाती है, वो आज हुई है, अगर हम उसे कल रिपोर्ट नहीं करेंगे और उसको 2-3 दिन बाद रिपोर्ट करेंगे तो दैट विल नॉट बी द न्यूज़. हाँ, ये हो सकता है कि कोई चीज़ हुई है, कोई हैपनिंग हुई है, लेकिन वो रिपोर्ट कहीं भी नहीं हुई है, किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी न्यूज़ चैनल में नहीं हुई है. तो अगर वो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हो रही है, फर्स्ट टाइम पब्लिश हो रही है, फर्स्ट टाइम वो ब्रॉडकास्ट हो रही है, then it will be a news. If it is not reported before, the news, the information, the facts, the happening, the event become news when it is reported for the फर्स्ट टाइम. अगर वो एक बार रिपोर्ट हो चुकी है, एक बार न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुकी है और कोई अदर न्यूज़पेपर अगर 2-3 दिन बाद रिपोर्ट करेगा, पब्लिश करेगा, देन इट विल नॉट बी अ न्यूज़. So news, what is news? News is the information about recent event or happening, especially as reported by newspaper, periodicals, radio and television. A news is something or matter now, fresh, unusual, unique, strange and exclusive. Yes, basically news is reported by the mass media, television, periodical, newspaper, radio. So when they publish or broadcast the information, that becomes news to a large number of masses, amongst a large number of masses. News is what something that we did not know before. हमारे लिए वो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन न्यूज़ होगी जो हमें पहले से नहीं पता है. अगर हमें कोई चीज़ पता है पहले से और कोई बाद में हमें आके बता रहा है या न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छप रही है, पब्लिश हो रही है, देन इट विल नॉट बी अ न्यूज़. So news is something that interests people, a large number of people, even nation or the world at large. Yes. So कोई भी हर एक इन्फॉर्मेशन न्यूज़ नहीं होती है. न्यूज़ वही होती है जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को इंटरेस्ट करती है, इम्पैक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी अमिताभ बच्चन, अगर उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो भी वो न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि अमिताभ बच्चन के बारे में हर कोई जानना चाहता है. सपोज अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या किसी की भी गाड़ी का, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, तो will it be a news for a city or it will be a news for the nation? No, because ordinary मैन है, ऑर्डिनरी लोग हैं, ऑब्वियसली टायर पंचर होता है तो दैट विल नॉट बी अ न्यूज़ ऑब्वियसली. बट अगर द अमिताभ बच्चन की गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, या फिर उनके साथ कुछ भी हो जाए, उनके हाथ में एक
हल्की सी चोट भी लग जाए देन इट विल बिकम अ न्यूज़। बट अगर किसी कॉमन आदमी के हाथ में हल्की सी चोट लग जाए, उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाए, देन इट विल नॉट बी अ न्यूज़ फॉर द होल नेशन or for the whole city. So news is something which interests a large number of people. News is a timely reporting of event, issues, problem, happenings that impact or interest a large number of people. Yes. Now, according to William Rivers, what is news? News is a timely report of events, facts, and opinions that interest a significant number of people. Yes, according to William Rivers, for him, the two key elements of the news are timely and interest. उनके according न्यूज़ में, विलियम रिवर्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ में दो एलिमेंट की एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है टाइमली, मतलब टाइम ऑन टाइमली उसको रिपोर्ट किया जाए, और इंटरेस्ट, दैट मीन्स वो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इंटरेस्ट के इंटरेस्ट की हो। सो तो जो उनके अकॉर्डिंग जो एक न्यूज़ रिपोर्ट है वो टाइमली होनी चाहिए, लेकिन वही है कि अगर वो टाइमली होती भी है और वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लैक करती है, उस न्यूज़ में इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट नहीं है, कोई ऑडियंस के इंटरेस्ट की नहीं है, भले ही उसको टाइमली हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, ऑन टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ऑडियंस के इंटरेस्ट की नहीं है, सो इट विल नॉट बी अ न्यूज़। यस, और सेम गोज अगर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में कुछ इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट वो न्यूज़ इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर उसे टाइमली रिपोर्ट नहीं किया जाएगा तो भी वो न्यूज़ नहीं कहलाएगी या न्यूज़ नहीं होगी। वाइस वर्सा है, टाइमली है बट इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए, और इंटरेस्टिंग है तो उसको टाइमली रिपोर्ट भी किया जाना चाहिए, देन इट विल बिकम अ न्यूज़। सो अकॉर्डिंग टू विलियम रिवर्स, two key elements of news are time and interest, and a news report should have both the elements, then it will be a news. Now, according to Willard's G. Breyers defines, news is anything timely that interests a number of people, and the best news is what which of greatest interest to the greatest number of people. Yes, so Breyers, according to Breyers, न्यूज़ जो है वो इन्होंने भी वही सेम चीज़ कही है कि टाइमली रिपोर्ट होना, न्यूज़ जो है वो टाइमली रिपोर्ट होनी चाहिए, टाइमली उसको उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए, और वो रिपोर्ट किया जाना चाहिए वो इंफॉर्मेशन या वो फैक्ट रिपोर्ट किया जाना चाहिए जो बहुत इंटरेस्टिंग हो और बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को वो इंटरेस्टिंग लगे। तो जितनी ज़्यादा उसकी जितना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट होगा उतनी ज़्यादा वो क्या कहते हैं लोगों तक पहुँचेगी। with greatest interest to the greatest number of people. Yes, exactly. So जितनी ज़्यादा वह इंटरेस्टिंग होगी उतने ही ज़्यादा लोग उसे पढ़ेंगे और वो न्यूज़ बहुत फेमस हो जाएगी, बहुत लोग उसे पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्राइटेरिया होगा, बहुत ज़्यादा लोग उसे पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। Now, according to Melvin and Dennis, news is current or fresh information that is gathered and disseminated through a news process to public about an event or subject of interest to a significant number of people. Yes, according to Melvin and Dennis, news should be current and fresh information, and that is gathered by the reporter and disseminated also by the newspaper organization or by the television news channels. Now, what Charles Dana says about news. न्यूज़ इज़ एनीथिंग विच विल मेक पीपल टॉक। यस, चार्ल्स डाना के अकॉर्डिंग न्यूज़ एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लोगों को बात करने पे मजबूर कर दे। मतलब न्यूज़ एकदम से ब्रेक हुई, आपने न्यूज़ पढ़ी और उस पर लोग डिस्कशन शुरू कर दें, उस पर लोग बात शुरू कर दें। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डाना, न्यूज़ इज़ एनीथिंग दैट विल मेक पीपल टॉक,
जो लोगों को एक मौका दें कि वो क्या कहते हैं उस पर चर्चा शुरू कर दें, तो वो उनके अकॉर्डिंग न्यूज़ है. नाउ अ न्यूज़ इज अ फेयर, एक्यूरेट, कंसाइज, बैलेंस्ड अकाउंट ऑफ करंट इवेंट दैट इज ऑफ इंटरेस्ट टू अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल. यस, जो न्यूज़ है वो फेयर होनी चाहिए, मतलब दैट मीन्स बायस नहीं होनी चाहिए. अगर उस पर्टिकुलर न्यूज़ में टू साइड की इंफॉर्मेशन यानी कि टू पार्टीज की कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड अगर वो न्यूज़ है तो उस न्यूज़ में दोनों पार्टीज की साइड्स को कवर किया जाना चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, एक तरफा रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए वो. नाउ अ फ्यू मोर डेफिनेशंस ऑफ न्यूज़ गिवन बिलो. News may be defined as any fact or idea that will interest a large number of readers. Yes, exactly. ये बहुत मेन पॉइंट है कि न्यूज़ वो होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करे, बहुत ज़्यादा लोगों के इंटरेस्ट की हो. News may be defined as an accurate, unbiased account of the significant facts of a timely happening that is of interest to people. Yes. So न्यूज़ आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए. एक्यूरेट दैट मीन्स कि उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो सही होनी चाहिए. आप अपने मन से उसमें कोई भी इनफैक्ट ऐड नहीं करोगे. अगर कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है तो ट्रेन एक्सीडेंट कौन सी ट्रेन का हुआ है, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने लोग घायल हुए, तो वो चीज़ आप एक्यूरेटली दोगे. अगर नंबर्स अभी एक्यूरेट एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, सो यू कैन राइट इन योर न्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली या अराउंड. तो आप अगर दैट मीन्स कि नेम्स जो आपके सीएम्स के नेम है, डिप्टी सीएम्स के, एसपी डीएसपी के जो नेम्स हैं वो आप एक्यूरेट होने चाहिए उसमें. ये नहीं कि आपने डिप्टी सीएम डेजिग्नेशन लिखा एंड उसकी जगह आपने गलती से या फिर आपने चेक नहीं किया और उसमें सीएम का नेम पब्लिश हो गया एंड डेजिग्नेशन जो है वो आपकी डिप्टी सीएम की. तो it will not make your news credible, it will not make your newspaper credible. तो आपकी जो न्यूज़ है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. फिगर्स, नंबर्स, स्टैट्स, नेम्स, स्पेलिंग्स, सारी चीज़ें जो है वो सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए. न्यूज़ इज एन इवेंट, आइडिया और ओपिनियन दैट इज टाइमली, that interest or affect a large number of people in a community and that is capable of being understood by them. News किसी भी इवेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी का आइडिया हो सकता है, किसी के ओपिनियंस, आम जनता, आम पब्लिक का जो राय होती है किसी भी पॉलिसी पे, किसी भी मुद्दे पे, गवर्नमेंट के या देश के किसी भी मुद्दे पे, जो आम जनता होती है उसके जो राय होती है, उसके जो ओपिनियंस होते हैं, वो भी न्यूज़ होता है. उसको भी अगर कोई इवेंट, कोई इशू देश में चल रहा है, लोगों की राय है, लोग क्या कहते हैं अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, तो उन ओपिनियंस को भी टाइमली रिपोर्ट करना, दैट इज ऑल्सो न्यूज़. न्यूज़ इज व्हाट द न्यूज़पेपर प्रिंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रॉडकास्ट एंड न्यू मीडिया पब्लिश. येस, एग्जैक्टली. तो जो भी हम मास मीडिया में देखते हैं, न्यूज़पेपर, प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन में जो भी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर होती है, न्यूज़, वो न्यूज़ बुलेटिन, दैट इज न्यूज़. Now come to the concept of news. What is the concept of news? So let's discuss the 3 points. ये जो हम points discuss करेंगे इससे और ज़्यादा आपको news का concept समझ में आ जाएगा. Okay. So let us consider the following information. A girl from your village attends high school. आपके टाउन की, आपकी विलेज की लड़की ने वो हाई स्कूल अटेंड की, मतलब वो हाई स्कूल उसने पढ़ने गई हो. नेक्स्ट, अ पर्सन ओपन्स अ साइकिल स्टोर इन योर विलेज. एक आदमी ने अपना एक साइकिल स्टोर खोल लिया विलेज में. नाउ द थर्ड पॉइंट इज अ वुमेन गिव्स बर्थ टू अ ट्रिपलेट इन योर विलेज. मतलब एक औरत ने 3 बच्चों को जन्म दिया.
सो अब नाउ विच ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन इज इंटरेस्टिंग, अब इन तीनों में से कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सो लेट अस डिस्कस। सो अगर कोई एक लड़की एक हाई स्कूल अटेंड कर रही है, मतलब हाई स्कूल वो परस्यू कर रही है, तो ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ है, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करेगा देश में और आपके स्टेट में, लेकिन हाँ, but if she is the first girl to your village to attend a high school, this will definitely create some interest, at least among people in your village. Yes, exactly. But अगर वो लड़की पहली लड़की है आपके गांव से, पहली लड़की, लिसन केयरफुली, अगर वो नॉर्मल एक लड़की ने हाई स्कूल अटेंड किया, ये एक ऑर्डिनरी चीज़ है, वो कोई इंटरेस्ट, हर कोई लड़की हाई स्कूल पढ़ती है आजकल, सभी पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, 10th पढ़ रहे हैं, सभी लोग, लड़कियां ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पायलट बन रही हैं, सब कुछ। लेकिन अगर लड़की, वो लड़की अगर सिंपल एक लड़की हाई स्कूल अटेंड करी तो ऑर्डिनरी चीज़ है, लेकिन अगर आपके गांव की वो पहली लड़की है जो हाई स्कूल अटेंड कर रही है, जा रही है पढ़ने, हाई स्कूल क्लियर कर रही है, तो वो क्या कहते हैं, एक इंटरेस्ट ज़रूर क्रिएट करेगा, कम से कम आपके अपने विलेज के अंदर। Now the second point, a man opens a bicycle store in a village. So एक साइकिल की दुकान खोलना, साइकिल का स्टोर खोलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपके साइकिल के बहुत सारे स्टोर्स होंगे, ठीक है, और उसमें से ये भी एक स्टोर है। लेकिन हाँ, अगर ये आपके गांव का पहला स्टोर या एक लौता स्टोर है, तो ये एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगा आपके गांव के लोगों के बीच में। यस, however if this is the only store in your village, it will attract attention. Yes, exactly. Now come to the third point, that is a women giving birth to triplets. Yes, now ये जो a women giving birth to triplets, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ होगी, क्योंकि नॉर्मली अ विमेन गिव्स बर्थ टू वन और ट्विंस, बट ट्रिपलेट्स को बर्थ करना कुछ obviously extraordinary होगा. Yes, on the other hand, a women giving birth to triplets will definitely attract anyone interest, because गिविंग बर्थ टू ट्रिपलेट्स इट्स नॉट वेरी यूजुअल थिंग, मतलब जनरली अगर हम बात करें डे टू डे, तो वीमेन डिलीवर करती हैं बेबीज़, वो सिंगल बेबी डिलीवर करती हैं या फिर ट्विन बेबीज डिलीवर करती है, लेकिन ट्रिपलेट्स बेबीज़ हम इतना ज़्यादा यूजुअल नहीं है डे टू डे लाइफ में जो विमेन डिलीवर कर रही हैं, ट्रिपलेट्स डिलीवर इतनी जल्दी नहीं होते, तो किसी बेबी किसी विमेन का ट्रिपलेट्स डिलीवर करना, yes, exactly, it will create curiosity, it will attract attention of the people. It rarely happens. It will be interesting information for people not only in your village but also in your district or state. Yes, अगर एक विलेज में किसी विमेन ने ट्रिपलेट्स मतलब 3 बच्चों को जन्म दिया है, तो डेफिनेटली इट इज़ एन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इट विल अट्रैक्ट द attention of the people in your village or even in your state or even in your डिस्ट्रिक्ट. येस, एग्जैक्टली. सो जो आपकी न्यूज़ है अगर वो अनयूजुअल है, आउट ऑफ द बॉक्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, देन it will create interest, attention of the people on a large scale. Information about such unusual happening is often packaged as news by media. Yes, अगर कुछ unusual होता है, कुछ extraordinary होता है, हमारी डे टू डे लाइफ जो ऑर्डिनरी सिंपल से हटके होता है, ऑर्डिनरी से हटके एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, तो डेफिनेटली उस न्यूज़ को बहुत अच्छे से पैकेज करके पब्लिश, ब्रॉडकास्ट, ऑपरेट किया जाता है. Now come to the basic criteria by which news is judged. So न्यूज़ इज़ न्यू, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, न्यूज़ हमेशा नई होनी चाहिए. वो पहले
कि रिपोर्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर वो पहले से रिपोर्टेड है और फिर आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, तो येस डेफिनेटली वो न्यूज़ नहीं होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ पहले से रिपोर्टेड नहीं है और वो एकदम लोगों ने उसके बारे में सुना नहीं है, पढ़ा नहीं, एकदम न्यू है, देन इट विल बी अ न्यूज़। येस, न्यूज़ इज ऑलवेज न्यू. For example, death of renowned actor Irfan Khan is news on the day it happened or at the very best day, the next day newspaper. Yes, अगर कोई आज अगर कोई हैपनिंग होती है, कोई या फिर कोई डिस्कवरी हो जाती है मेडिसिन की, लाइक कोरोना की मेडिसिन का इंडिया का क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल आज हो जाता है, देन इट विल बी अ न्यूज़ ऑफ टुडे. ओके, एंड टुमारो ऑल्सो इफ इट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर में अगर आज कोई चीज़ हुई है तो न्यूज़पेपर में ऑब्वियसली वो कल आएगी. तो न्यूज़पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो कल भी न्यूज़ है. आज जो हुआ है वो ऑब्वियसली न्यूज़ है, टेलीविजन चैनल्स उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे, पर न्यूज़पेपर में वो कल आएगी. तो आज अगर कुछ इवेंट हुआ है या कोई भी हैपनिंग हुई है, सो today that is news, or tomorrow also it will be the news in newspapers, but day after tomorrow it will not be a news if it will publish in newspaper or it will be broadcasted on television, because वो पहले से ही रिपोर्ट हो गई है. now however it is not going to be published in day after tomorrow's newspaper. yes exactly, अगर आज कुछ हुआ है तो हम उसे कल ही पब्लिश करेंगे, ना कि उसको 2 दिन बाद, because it is no longer new information. New information is news. However, if some new information, yes, listen carefully, however if some new information about his death, like Irfan Khan's death, is found, it can be reported. अगर उनके जो उनकी डेथ हुई उसके पीछे के जो रीजंस अगर बाद में पता चलेंगे कि बहुत प्रोलॉन्ग इलनेस से गुजर रहे थे, या फिर और भी उनके जो ऑर्गन्स थे उन्होंने काम करना बंद कर, अगर वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मैं उनके फैमिली से या जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे वहाँ से, देन दैट न्यू इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बिकम न्यूज ऑन द नेक्स्ट डे. That will be a follow-up story. Now second one is news is unusual. News is unusual, that means something that is not usual, that is not happening एवरी डे. कुछ अलग हटके, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि हमारी डेली लाइफ में ना होता हो और हमने कभी सुना ना हो और अचानक से हम वो चीज़ सुन लें. लाइक 7वीं मंजिल से, बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से कोई गिर जाए और बच जाए, ना मरे, तो इट विल बी अ न्यूज़ बिकॉज इट इज़ अनयूजुअल. 7वीं मंजिल से गिरना, ऑब्वियसली हड्डी पसली सब टूट जाना, इंसान का जिंदा ना बचना, लेकिन एक इंसान जो कि 7वीं मंजिल से गिरे और बच जाए, then that will be a news because it is unusual. Yes, every time things are happening around us, but all of them are not news. Exactly, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं, but सब तो न्यूज नहीं हो सकती है. So जो unusual होगी वो न्यूज होगी. As we discussed above, a girl going to the school is a usual thing. Yes, एक लड़की स्कूल जा रही है, सब लड़कियां स्कूल जा रही हैं, उसमें कोई नई चीज नहीं है, वो यूजुअल थिंग है. But if the girl is the first girl from the community or region to attend a school, then it is unusual and it will make news. मतलब अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है जो कि बहुत ऑर्थोडॉक्स है और गर्ल्स एजुकेशन के फेवर में नहीं होती है, और वहाँ उस कम्युनिटी की कोई लड़की पहली बार अगर स्कूल जाती है तो वो अनयूजुअल थिंग है, तो दैट विल बिकम अ न्यूज. नाउ द क्लासिक एग्जाम्पल विच एवरीवन गिव, दैट dog bites a man, it's not news, but when a man bites a dog it is a news. क्योंकि कुत्ता इंसान को काटता है यूजुअल है, बट अगर कोई एक आदमी एक कुत्ते को काट ले, एक ह्यूमन बीइंग कुत्ते को काट ले, ये अनयूजुअल है, तो दैट विल बिकम योर न्यूज. Now come to the point, news is interesting. Yes, अगर न्यूज़ इंटरेस्टिंग नहीं है तो ऑब्वियसली उसे कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा. सो न्यूज़ का इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है. Even if an event is new and unusual, it may not be a news. Yes, if it lacks people interest. अगर कोई चीज़ नई है, अनयूजुअल है, लेकिन अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो वो कहीं ना कहीं लैक, अगर वो इंटरेस्ट उसका लैक कर रहा है तो वो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी अ न्यूज. यस, एग्जाम्पल चलिए हम देखते हैं. वन बॉय फ्रॉम योर विलेज गेट्स फर्स्ट क्लास.
दिस माइट बी न्यू एंड अनयूजुअल थिंग इन योर विलेज. एग्जैक्टली, अगर आपके गांव से पहली बार किसी लड़के ने या किसी लड़की ने टॉप किया है, फर्स्ट क्लास पाया है, तो इससे पहले किसी आपके गांव के बच्चे के नहीं आए थे, तो आपके लिए वो नया है, आपके लिए वो अनयूजुअल है. लेकिन ये बट इट इज अनलाइकली टू इंटरेस्ट एनीबडी अदर देन योर विलेज और फैमिली. लेकिन हाँ, लेकिन यही इंफॉर्मेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग है, आपके लिए अनयूजुअल है, लेकिन आपके गांव के लिए अनयूजुअल, आपकी फैमिली के लिए अनयूजुअल है. ऑब्वियसली आज तक कोई बच्चा फर्स्ट क्लास नहीं आया आपके गांव से, आपकी कम्युनिटी से. लेकिन ये ऑन होल अगर हम बात करें तो ये औरों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, ये बाकी सिटीज़ के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, बाकी हमारी कंट्री के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है. हाउएवर इफ द बॉय इज अ स्टेट टॉपर, लेकिन अगर हाँ, अगर वो बच्चा स्टेट लेवल पे टॉप करता तो या फिर नेशनल लेवल पे टॉप करता, तब इट विल जनरेट इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर स्टेट. यस, अगर आपकी फैमिली में पहली बार किसी बच्चे ने टॉप किया है तो वो आपके लिए है अनयूजुअल, लेकिन अगर उसने पूरे स्टेट में, उसने पूरे कंट्री में टॉप किया है, देन इट विल बी न्यूज़ ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू द होल नेशन. पूरे देश के लिए वो एक न्यूज़ होगी, अगर वो स्टेट टॉपर, नेशनल टॉपर या फिर आपका सिटी टॉपर होगा तो. यस, द नेक्स्ट पॉइंट विल बी न्यूज़ इज सिग्निफिकेंट. नाउ इन एडिशन टू बी न्यू, अनयूजुअल एंड इंटरेस्टिंग, न्यूज़ इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट. मतलब सिग्निफिकेंट मतलब वो सही है, उसका रेलेवेंस है या नहीं है. सो लेट्स कंसिडर वन एग्जाम्पल मोर. अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अगर अनाउंस करता है कि वो गांव वालों को शुगर मतलब चीनी और आटा, चीनी, गेहूं और चावल बांटेगा पूरे विलेज में, 10 केजी, 1 केजी, 2 केजी, तो दिस हैज लीस्ट सिग्निफिकेंस. और ये कोई इट विल नॉट बी अ न्यूज अगर कोई सिंपल एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर. बट अगर यही सेम अनाउंसमेंट कोई चीफ मिनिस्टर करे किसी स्टेट का, या फिर प्राइम मिनिस्टर करें पूरे देश के लिए, देन इट विल बिकम अ न्यूज. क्योंकि चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इज इन अ पोजीशन, वो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, एक रिनाउंड पोजीशन पे है, और अगर वो इस तरीके का अनाउंसमेंट करते हैं, देन हर कोई उसको पढ़ना चाहेगा, हर कोई उसको सुनना चाहेगा, एंड इट विल बी ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. सो दैट announcement made by chief minister or prime minister will become news, not the announcement made by the मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तो बहुत सारे मेंबर होते, कोई भी एक मेंबर ऐसा अनाउंसमेंट कर दे तो उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं होगा. लेकिन हाँ, अगर कोई चीफ मिनिस्टर या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा अनाउंसमेंट करता है तो उसकी ऑब्वियसली न्यूज़ कवरेज होगी, क्योंकि वो इतने बड़े अथॉरिटी, इतनी बड़ी पोजीशन पे वो पर्सन है और वो एक ऐसा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो उसका ऑब्वियसली वो सही अनाउंसमेंट होगा और वो सिग्निफिकेंट होगा. सो एंड एवरीबडी वांट्स टू रीड अबाउट चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो इट विल बिकम अ न्यूज़. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूज़ इज नॉट ऑलवेज अबाउट पीपल. यस, जो कोई भी इंसिडेंट्स होता है, हैपनिंग होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, लोगों का नाम आता है, उनसे जुड़ी होती हैं खबरें. लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो किसी इंसान से, किसी पीपल से, किसी रिनाउंड पर्सनालिटी से या किसी नेम से ही न्यूज़ जुड़ी हो. ओके, कोई भी ऐसा हैपनिंग, जैसे कि आपका अर्थक्वेक आ जाता है, आपका सुनामी आ जाती है, फ्लड आ जाता है, दैट विल ऑल्सो बिकम अ न्यूज़. Most news is automatically about people, as most of the events always involve people, directly or indirectly. Yes, human beings are not always the prime factor in all the events. Sometimes non-human things like cyclone, a bushfire, a drought, or an earthquake also happen. However, when such natural disaster or non-human event happen, it becomes news when it affects people's life. Yes. So इस तरीके की happening, natural disaster, that will also makes news, that will also become news.
So now see, news is a very dynamic concept. It changes with time. Exactly, it also varies from society to society. A girl going to the school in a capital town may not be news. Yes, हर कोई सिटी में लड़कियां पढ़ रही हैं, गांव देहात में भले ही ना पढ़ी, बट सिटी में पढ़ी, तो a girl going to a school in a capital town may not be a news. But a girl from a tribal community going to school may be news. Yes, prior to advent of internet and TV channels, an event happened yesterday was news. But in the present era of 24-hour news channels, what is news in the morning is a stale by the noon. Yes, जब इससे पहले टेलीविजन चैनल्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो जो न्यूज़ जो आज हुई है हैपनिंग, वो कल के लिए न्यूज़ होती, क्योंकि वो ऑब्वियसली सिर्फ न्यूज़पेपर में ही पब्लिश होती थी. लेकिन आज के टाइम पे इतने मॉडर्न एरा में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इंटरनेट इतना एडवांस है, टेलीविजन चैनल्स 24/7 है, वहाँ पे आज अगर कोई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस एरा में अगर पर्टिकुलरली आज कोई चीज़ हुई है सिंगल डे में, सो दिस विल बी अ न्यूज़ फॉर टुडे, क्योंकि इट विल बी ब्रॉडकास्टेड immediately on TV channels or published on internet. Although it will be a news tomorrow when it comes to a newspaper. तो न्यूज़पेपर के लिए वो न्यूज़, आज की न्यूज़ जो आज अगर कोई इवेंट हुआ है तो वो कल के न्यूज़पेपर में छपेगी एंड इट विल बी अ न्यूज़. Now come to the types of news. News story can be generally divided into two types: straight news and interpretive news. Interpretive writing. Straight news is a compilation of uh, 5 Ws, 1H, and a straight news story gives factual account what has happened in a simple, direct, clear and accurate manner. जो हुआ है, जैसे हुआ है, उसकी डिटेल्स एज इट इज लोगों तक पहुंचाना, दैट इज द कैटेगरी ऑफ स्ट्रेट न्यूज. नाउ व्हाट इज इंटरप्रेटिव न्यूज? इंटरप्रेटिव न्यूज़ वो होती हैं जो जिनकी इनडेप्थ रिपोर्टिंग की जाती है. इनडेप्थ रिपोर्टिंग, उनका बैकग्राउंड सर्च, everything will come in interpretive news through interpretive reporting. Interpretive news stories report events in depth, gives all sides of the event, provide background information, gives all sides of the event, मतलब हर पक्ष को एनालाइज करके, हर साइड्स को एनालाइज करके वो सारे पर्सपेक्टिव को न्यूज़ में ऐड किया जाता है. प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. अगर वो न्यूज़ वो जो न्यूज़ पब्लिश हुई है किसी भी हैपनिंग की, किसी भी इवेंट की जो प्रीवियसली हो चुका था, उसकी ये कहते हैं न्यूज़ 5 साल बाद 6 साल बाद आ रही, कोई कोर्ट केस, कोई आपका गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की लैंड से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट था जो कुछ साल पहले हुआ था और उसकी हेयरिंग अब हो रही है, तो उसकी जैसे जैसे उसके ईयर वाइज हेयरिंग होती रहेगी वैसे वैसे वो न्यूज़ आती रहेगी. तो उस न्यूज़ को इंटरप्रेटिव न्यूज़ के फॉर्म में देना, मतलब इन डेप्थ रिपोर्टिंग करना, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, पिछले साल हेयरिंग में क्या हुआ था, डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ और कौन कौन से पक्ष उसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन से साइड उसमें इन्वॉल्व है, उन सारी चीज़ों को एक न्यूज़ में प्रोवाइड करना, दैट विल कवर अंडर योर इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग एंड दैट इज अ इंटरप्रेटिव news. So gives all side of the event, provide background information and put new meaning into the event so that the reader can better understand and appreciate the event. Now some scholars classify news into hard news and soft news. कुछ scholars जिन्होंने news को hard news और soft news में भी categorize किया. So let us discuss what is hard news and soft news. So, hard news. The term hard news usually refers to serious, factual and timely stories about important events. So, basically जो आपकी hard news है, that is related to crime, government, politics and day-to-day happenings of our life. That will all covered under your
Hard news stories. Stories may describe a major crime, fire, accident, speech, labor dispute, or political campaigns. So, these are the topics which are covered under your hard news. That means crime, fire, accident, speech, labor dispute, or political campaign. हार्ड न्यूज को हम स्पॉट न्यूज और स्ट्रेट न्यूज भी कहते हैं. यस, स्ट्रेट न्यूज इसलिए क्योंकि वो फैक्चुअल चीज़ों को रिपोर्ट करती हैं, जो हुआ है जैसे हुआ है उसको वैसे ही रिपोर्ट कर देते हैं. स्पॉट न्यूज क्योंकि वट एवर हैपेंड on the spot, whatever happened on that particular day, that is reported on that particular day only, and whatever happened that on that particular spot, it is reported from that particular spot only. That means the reporter goes to the field and observe the surroundings, take the notes, take the information, take the notes from the witness of the event. So it is called straight news because it presents the factual elements of the news, that is who, what, when, where, and how. Now, hard news can simply be described as account of event that has happened or are about to happen, impacting large part of the society. This specific type of news has to be covered almost immediately. Yes, hard news hard news is the अकाउंट ऑफ द इवेंट जो कि हो चुके हैं और या फिर होने वाले कुछ इवेंट्स जो कि होने वाले हैं और उनको रिपोर्ट करना ज़रूरी है. मतलब आम जनता को बताना कि ये पर्टिकुलर इवेंट अब होने वाला, लाइक वर्ल्ड कप जब शेड्यूल होता है तो उसकी जो डेट्स होती हैं वो पहले से आ जाती हैं, तो उन डेट्स को न्यूज़ के फॉर्म में रिपोर्ट किया जाता है. न्यूज़पेपर उसको रिपोर्ट करते हैं कि वर्ल्ड कप विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टू दिस, या वर्ल्ड कप की जो भी तैयारियां शुरू हो गई होती हैं वो सारी चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं. सो इवेंट वो होने वाला, फीफा वर्ल्ड कप, आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप, आपका हॉकी मैच, टेनिस मैच, ये सब जो टूर्नामेंट्स होते हैं जो होने वाले होते हैं, हुए नहीं होते, होने वाले होते हैं, उनके बारे में भी रिपोर्ट करता है और जो पब्लिक है उसको इन्फॉर्म करता है कि दीज आर द इवेंट्स विच आर लाइंड अप फॉर द फ्यूचर. और जब वो इवेंट्स होते हैं तो उनको भी उस पर्टिकुलर डे टाइमली वो रिपोर्टर्स करते हैं. सो दैट these kind of news comes under your hard news. Hard news are stories that have developed overnight or on the same day are often referred to by journalists as breaking news. अगर हम प्रिंट मीडिया जर्नलिज्म की बात ना करें, प्रिंट जर्नलिज्म में, प्रिंट मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ का कॉन्सेप्ट. दैट मीन्स कि अगर कोई इवेंट, कोई हैपनिंग अभी हुई है तो उसके 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उसको तुरंत ब्रॉडकास्ट कर देना न्यूज़ चैनल पे, दैट इज ब्रेकिंग न्यूज़. बट प्रिंट जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो उसमें आपका ये ब्रेकिंग न्यूज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है. सच न्यूज़ स्टोरी एम्फसाइज फैक्ट्स एज इट हैज़ हैपेंड. सो जो हार्ड न्यूज़ स्टोरीज हैं वो न्यूज़ को हार्ड न्यूज़ स्टोरीज में जो न्यूज़ है वो एज इट इज़, जो फैक्चुअल इवेंट्स हुए होते हैं उनको प्रेजेंट करती है, ना कि ओपिनियंस और एनालिसिस को. जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन या फिर जो एनालिसिस होता है उस पर्टिकुलर इवेंट हैपनिंग या प्रॉब्लम इशू को लेकर के, वो हार्ड स्टोरी कवर नहीं करती है. हार्ड स्टोरी न्यूज़ जो है, हार्ड न्यूज़ जो है वो सिर्फ फैक्चुअल इवेंट्स को, वट एवर हैज़ हैपेंड, the hard news story present as it is, the facts as it is, उसमें no if and but add नहीं करती. whatever happened, who, what, when, where को वो प्रेजेंट करती है हार्ड न्यूज स्टोरीज, और उसमें ओपिनियन एंड एक्सपर्ट के एनालिसिस जो होते हैं वो हार्ड न्यूज कैटेगरी में नहीं आते हैं. यू कैन सी द few examples. No significant rate of increase in COVID-19 positive cases, ICMR. Odisha become first state to extend lockdown till April 30.
You can see the headlines, so you will get an idea. These are the examples of hard news. Headway at LAC as China India begins troops pull back. So hard news consists of basic facts: who, what, when, where, how. It is news of important public events. Yes, exactly. जो हार्ड न्यूज स्टोरी है वो important public events को कवर करती है, such as government action, crime, international happening, social conditions, the economy, environment and science. तो इन सारे मुद्दों से रिलेटेड, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है, दैट इज हार्ड न्यूज़. It has significance for large number of people. The front section of newspaper, yes, exactly, जो front section of the newspaper होता है, mostly occupied by, covered by the hard news stories. So जो front section में आप देखते हो जितनी भी न्यूज़ स्टोरीज होती हैं, mostly जो न्यूज़ स्टोरीज होती हैं, that are all hard news. Read the newspaper and observe it. See, Kashmir is now union territory. So this is the government decision, government constitution में articles में change हुए, and this will be a news. Kashmir is now union territory. Now come to soft news. So what is soft news? Soft news is not time bound, and soft news create an emotional appeal among the audience. Let us discuss what is soft news is all about. News which does not depend much on time element is often called soft stories. For example, अगर कोई सेलिब्रिटी, अगर कोई एक्सपर्ट आपका किसी सिटी में जाता है या किसी इनॉग्रेशन के आता है, वो इनॉग्रेट करता है, ठीक है, दैट विल बी अ हार्ड न्यूज़ कि वो पर्टिकुलर सेलिब्रिटी इस पर्टिकुलर शहर में आया, सिटी में आया और उसने एक पर्टिकुलर शोरूम को इनॉग्रेट किया. दैट इज़ अ हार्ड न्यूज़. वो आपका आज आया, कल नहीं तो पब्लिश हो जाएगा. बट अगर उसका कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है या उनकी एक्सक्लूसिव टॉक है न्यूज़पेपर या जर्नलिस्ट के साथ, वो जब पब्लिश होगी, वो ज़रूरी नहीं है कि वो जब आए हैं उसके नेक्स्ट डे ही पब्लिश हो. वो उनका इंटरव्यू, उनकी जो टॉक है, स्पेशल टॉक, एक्सक्लूसिव टॉक, वो एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद भी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो सकती है. सो सॉफ्ट न्यूज़ आर नॉट टाइम बाउंड. जैसे आप हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स देखते हो, आप स्किन केयर रिलेटेड आर्टिकल्स देखते हो, जो कि आपके सप्लीमेंट जो होते हैं, जो आपके न्यूज़पेपर के सप्लीमेंट्स होते हैं, HT सिटी, लखनऊ टाइम्स में जो आप सप्लीमेंट्स देखते हो, यंग वर्ल्ड, द हिंदू का, तो that is your soft news stories. Many journalists define soft news as news that entertain as it inform. उनके अकॉर्डिंग जो सॉफ्ट न्यूज़ है वो एंटरटेन तो करती है और इन्फॉर्म भी करती है, विच मोर एम्फेसिस ऑन ह्यूमन इंटरेस्ट, नोवेल्टी एंड कलरफुल राइटिंग, एंड लेस ऑफ फैक्ट्स एंड इवेंट्स दैट हैव जस्ट हैपेंड. यस, सो कोई भी इवेंट जो कि तुरंत हुआ है उसको नेक्स्ट डे रिपोर्ट करना विल नॉट कम अंडर योर सॉफ्ट न्यूज. सॉरी, it does not mean the soft news lack factual foundation. Yes, अगर वो टाइमली रिपोर्ट नहीं होती है, दैट डजेंट मीन कि जो सॉफ्ट न्यूज़ है वो फैक्चुअल फाउंडेशन लैक करती है. सॉफ्ट न्यूज़ में भी आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको सॉफ्ट न्यूज़ स्टोरी में. सच न्यूज़ हैज़ much importance to the life of the audience. It depends upon human interest for its news value and appeal people curiosity, sympathy, skepticism or amazement. Yes, so जो आपकी सॉफ्ट न्यूज़ स्टोरी है वो टोटली ह्यूमन इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़ लाइक a student a child of a boy of rickshaw wala becomes IAS. एक रिक्शे वाला का बेटा IAS बन गया. yes, so एक रिक्शे वाला का बेटा IAS बन गया. yes, it will be a soft news और एक ह्यूमन इंटरेस्ट की न्यूज.
इसमें जब ऐसी न्यूज़ लोग पढ़ते हैं तो उनके अंदर एक इमोशन, फीलिंग, एक इनकरेजमेंट जागता है कि एक रिक्शे वाला का बेटा आईएएस बन सकता है। रिक्शे वाला जो कि सोचिए आप कितना वो उसके पास शायद इतने पैसे नहीं होंगे, वो रोज़ कमाता है और रोज़ की अर्निंग है। अगर वो एक दिन रिक्शा ना चलाए तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे। तो एक रिक्शे वाला का बेटा, एक ऑटो ड्राइवर का बेटा, एक पॉलिश करने वाला का बेटा, आपका एक कॉबलर का बेटा अगर आईएएस बन जाए या पीसीएस बन जाए, देन यस इट विल बी अ सॉफ्ट न्यूज, क्योंकि एक इमोशनल अपील क्रिएट करेगा, इंकरेजमेंट देगा, एक हमें इंस्पायर करेगा कि यस इफ द पर्सन कैन डू इट, एक रिक्शे वाले का बेटा कर सकता है, एक कॉबलर का बेटा कर सकता है, एक ऑटो वाले का बेटा कर सकता है, तो व्हाई नॉट वी, जिनको हमें इतनी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, बच्चे कोचिंग करते हैं इसके लिए, पर वो रिक्शे वाला का बेटा उसने शायद हो सकता है कोचिंग ना क्यों, अपनी खुद की मेहनत से पढ़ा हो सकता है उसके घर में लाइट ना हो, स्ट्रीट लाइट में पढ़ा हो। सो दीज आर द स्टोरी ऑफ दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर सॉफ्ट न्यूज़, और जो कि एक जो कि ह्यूमंस के अंदर एक फीलिंग अराउज करती है, एक इमोशनल एलिमेंट डालती हैं, एक इनकरेजमेंट की फीलिंग इंक्रीज करती है। फीचर एडिटोरियल आर्टिकल्स आर फॉल अंडर दिस कैटेगरी। See, you can see the example, health benefits of baked food. Choose right. And this Yummy Gautam's interview, I don't try too hard to strike a conversation. So ये हेल्थ से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं ये टाइम बाउंड नहीं होते हैं, आप इनको महीने में कभी भी पब्लिश कर सकते हो, आप कोई सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कभी भी पब्लिश कर सकते हो। ये एक बच्ची है, इनका एक आर्टिकल आया था, शी हेल्प्ड ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस, तो इन्होंने, ये बच्ची जिनका आर्टिकल आया था, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि कैसे हाउ शी कैन हेल्प द ऑटिज्म चाइल्ड्स। सो इस तरीके के जो ऑर्डनरी लोग होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करते हैं, लीग से हटकर कुछ करते हैं, सोशल कॉज के लिए कुछ करते हैं, उनकी स्टोरी, उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी होती है, उनकी जो जर्नी की स्टोरी होती है, दैट इज covered by the journalist under the category of soft news. Single mom making films on the problem of absent dad. So these kind of stories come under the category of soft news. They are not time bound, and these kind of stories inspire, encourage the society, the people, encourage, inspire the people, and also arouse an emotional appeal. लोगों को वो sensitize करते हैं थ्रू दिस स्टोरीज, पीपल गेट अवेयर, और उनमें भी एक ज़ील आती है, उनमें भी एक पैशन आता है, वो भी अपने आप को एक्टिवेट कर पाते हैं, उनके अंदर भी नई चीज़ें करने का हौसला आता है, जागृत होता है। What other cities can learn from Nagpur water mission? Yes, Nagpur is a city जिसने वो अपना वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, वाटर मिशन शुरू किया। सो ये डेवलपमेंट स्टोरीज, ये भी एक तरीके की सॉफ्ट स्टोरीज हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं, और ये लोगों को भी हेल्प कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, इंकरेज कर सकती है। 10 things every woman should know about safety. यस, इस तरीके के आर्टिकल्स जो कि फीमेल्स के बेनिफिट, फीमेल्स के फेवर के लिए होते हैं, जिससे कि फीमेल्स कुछ नया सीखें, कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और अपने आप को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। हेल्थ ऑन अ प्लैटर, यस, हेल्थ रिलेटेड योर articles. The youngest tarot card reader, meet world youngest tarot card reader. Yes, so these kind of articles, these kind of news stories come under the category of soft news. So most of the soft news originate from the hard news. Yes, बहुत सारी soft news जो हैं आपकी, वो hard news से भी निकल के आती हैं। Normally the follow up stories of a major event highlights the angle not covered in the hard news item. Mostly the human interest angle are such type of news. Yes, जैसे कि अभी अगर हम बात करें in this time in this pandemic time, in this corona time, जहाँ पे डॉक्टर्स obviously
वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, ऐसे आम जनता है, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं इनसाइड द ऑर्डिनरी पब्लिक, इनसाइड द पब्लिक देयर आर मेनी ग्रुप्स who are doing who are the volunteers who are doing voluntarily work for the COVID patient, for the they had work for the migrant पीपल। उन्होंने लोगों को खाना खिलाया, उन्होंने माइग्रेंट्स को खाना खिलाया, उन्होंने माइग्रेंट्स की हेल्प करी, और जो सिटी में, एक पर्टिकुलर सिटी में स्टक हो गए थे लोग, उनकी हेल्प करी, उनको खाना प्रोवाइड किया, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया। सो उन लोगों की स्टोरीज, उन लोगों ने जो काम किया, उन लोग जिस तरीके से इस पैंडमिक में काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी नहीं है वो, लेकिन वो कर रहे हैं, सो वॉलंटियर कर रहे हैं। तो उनकी स्टोरीज को पब्लिश करना, एंड उनकी 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 ये जो स्टोरी है, उनकी जो ये जो उनके काम की जो कहानी है, उनके जो काम, जो उनके एफर्ट्स हैं, दैट आर ऑल कवर्ड अंडर, रिपोर्टेड अंडर योर सॉफ्ट न्यूज़, पब्लिश अंडर योर soft news. So let us discuss one more example. When you read that a severe cyclone has killed thousands of people in an area, that's hard news. Yes, साइक्लोन आया, बहुत लोगों को इफेक्ट किया, लोग बहुत सारे मर गए, दैट इज हार्ड न्यूज। बट उस साइक्लोन में, जो साइक्लोन आया, वो उस साइक्लोन में जो प्रॉब्लम्स हुई, उस प्रॉब्लम में कैसे लोगों ने वॉलंटियर किया, विक्टिम्स को, जो विक्टिम्स थे उनको हेल्प करी और रेस्क्यू किया, तो उनकी जो कहानी, उनकी जो स्टोरी है, दैट विल ऑल कवर्ड योर अंडर योर सॉफ्ट न्यूज़, दैट इज सॉफ्ट न्यूज़। The idea of such news story is to arouse, yes, curiosity among the readers or viewers, and हाइटन इमोशनल अपील। यस, कहीं ना कहीं एक इमोशनल अपील, जैसे इस तरीके के वॉलंटियर्स जो होते हैं, जो काम करते हैं, तो उनसे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम उनकी स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार ये देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो इनकी तरह आम लोग हैं, तो जब ये कर सकते हैं तो वाई नॉट वी। सो क्यूरियोसिटी अमंग द रीडर्स और व्यूवर्स heighten emotional appeal by presenting it in an interesting manner. And also to notice, while writing soft news stories, the writer is totally free. उसको पूरी लिबर्टी होती है कि वो इनोवेटिव हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, ही शी कैन राइट अ लिटिल लॉन्गर, use more dramatic language for the feature story, for the soft news story. रीच फॉर अ लाफ में इवन इंक्लूड सम ओपिनियन इन द स्टोरी। जैसे अगर हम विमेंस डे पे देखते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं विमेन से रिलेटेड, उसमें हम देखते हैं पर्टिकुलर पर्सनालिटीज़, जो विमेन पर्सनालिटीज़ हैं रिनाउंड, और जो ऑर्डिनरी विमेन हैं जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, उनके इंटरव्यूज़ आते हैं, उनके बारे में स्टोरी छपती है, और ओपिनियंस भी लिए जाते हैं। जो आम फीमेल्स होती हैं उनके ओपिनियन, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी स्टोरी में ऐड किए जाते हैं। आपकी सॉफ्ट न्यूज़ स्टोरी में आप ओपिनियंस ऐड कर सकते हैं, आप एनेक्डोट्स ऐड कर सकते हैं, वो आपकी जो सॉफ्ट न्यूज़ है उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। लॉन्गर सॉफ्ट न्यूज़ स्टोरीज आर ऑफन कॉल्ड फीचर्स और फीचर स्टोरी। तो ज़्यादा जो लेंदी, जो सॉफ्ट न्यूज़ होती हैं, सॉफ्ट न्यूज़ स्टोरी बहुत ज़्यादा लेंदी जब हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो हम उनको फीचर या फिर फीचर स्टोरीज भी कहते हैं। और ये हमने हमने जो लेक्चर में बात करी है, जैसे कि सॉफ्ट न्यूज़ एंड हार्ड न्यूज़ के बारे में, तो इसको और कैसे लिखा जाता है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाएंगे। सी द एग्जाम्पल, स्टूडेंट हेल्प मेट्रो वर्कर्स बीट द हीट। सो ये स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर किया कि कैसे जो मेट्रो वर्कर्स हैं उन्होंने पानी की बॉटल्स दे के उनकी हेल्प करी। जैसे आप भी एज अ ग्रुप, आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना के, जो ट्रैफिक पुलिस है जो कि इतनी गर्मी में काम करती है, उनके लिए भी आप कोई एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, कैंपेन शुरू कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें पानी की बॉटल्स, उन्हें छाता, उन्हें आप गर्मी से बचने के लिए कोई ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं जो हैंडी हो, जो कि वो अपनी ड्यूटी के टाइम पे यूज़ कर सकें। सो स्टूडेंट, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इसमें हमने आपकी टॉपिक्स जो हमने कवर किए, न्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा, और न्यूज़ के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने टाइप्स ऑफ न्यूज़ के बारे में पढ़ा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस
obviously how to write hard news, soft news, the structure of news writing, न्यूज़ राइटिंग का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स कैसे लिखते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. So go through this lecture, try to understand the topic, and you will face, if you will face any confusion, that will be cleared in your next lecture. Thank you student, I hope you will like this video.